بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے میں کسی جگہ ایک آدمی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ بیچارے اولاد سے محروم تھے اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ ان کے ہم یہ بچہ ہو۔ وہ دن رات دعائیں مانگتے اور بڑی عاجزی سے اللہ کے آگے فریاد کرتے، اے خدا ہماری تمنا پوری کر اور ہمیں بھی بیٹا بیٹی عطا کر۔ آخر اللہ نے ان کے سن لی اور بیوی امید سے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ان کے گھر کی پچھلی طرف کھڑکی کھلتی تھی اور اس میں سے وہ شاندار باغ نظر آتا تھا جو ان کے پچھواڑے میں تھا۔ اس باغ میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور قسم قسم کی سبزیاں اگی ہوئی تھی، مگر باغ کے چاروں طرف اونچی دیوار تھی جس کی وجہ سے کوئی اندر نہ جا سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ باغ ایک بہت بڑی جادوگرنی کا تھا، اس لیے بھی لوگ اس میں جانے سے ڈرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، اس آدمی کی بیوی اپنے گھر کی پچھلی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا باغ میں ایک کیاری ایسے پودوں سے بھری ہوئی تھی جو سلاد میں کھائے جاتے ہیں۔ پودے سرسبز اور تازہ تھے، اس طرح لے لہا رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر عورت کا دل للچا گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگی، اگر ان پودوں کی سلاد کھائی جائے تو کتنا لطف آئے گا۔ اب وہ روزانہ کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر ان پودوں کو دیکھتی اور انہیں حاصل کرنے کا سوچتی۔ اس طرح ہر روز اس کی تمنا شدت اختیار کرتی گئی۔ وہ ان پودوں کی سلاد کے لیے بے چین ہوئی جا رہی تھی، مگر جب اسے یہ اندازہ ہوا تو ان پودوں کا حصول ممکن نہیں کیونکہ یہ باغ ایک جادوگرنی کا ہے، تو وہ بڑی مایوس ہوئی۔ اس مایوسی میں اس کی حالت پوری ہو گئی۔ وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی اور اس کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ اس کے شوہر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بڑا حیران ہوا۔ ایک روز پوچھنے لگا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں تم روز پر روز کمزور ہوتی جا رہی ہو اور تمہارا رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں اس کی بیوی ایک ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، میں اس کا سبب جانتی ہوں مگر کیا کروں، پھر بھی مجھے بھی تو کچھ پتا چلے۔ اس کے شوہر نے حیرانی سے دریافت کیا۔ اس پر اس کی بیوی نے بتایا، ہمارے گھر کے پچھواڑے میں جو باغ ہے اس میں سلاد میں کھانے والے پودے لگے ہوئے ہیں، اگر میں نے ان پودوں کی سلاد نہ کھائی تو میں مر جاؤں گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر آدمی قدرے سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ باغ ایک جادوگرنی کا ہے اور اس میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، اب میرے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنی بیوی کو مرنے دوں یا پھر ان پودوں کا تھوڑا سا لاد توڑ کے لاؤں۔ اس نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے لیے پودوں کا سلاد توڑ کر لاؤں گا۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ چپکے سے اٹھا اور دیوار پھلانگ کر جادوگرنی کے باغ میں چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی ان پودوں میں سے 2-3 مٹھیاں بھر کے توڑی اور الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ پھر اسی طرح باغ کی دیوار پھاند کر گھر آ گیا اور پودوں کی سلاد بیوی کو دیتے ہوئے بولا، لو میں نے تمہاری تمنا پوری کر دی ہے۔ بیوی نے اس کے ہاتھ میں پودوں کے پتے دیکھے تو بہت خوش ہوئی۔ اس نے اسی وقت ان کی سلاد تیار کی اور پھر مزے لے لے کر کھانے لگی۔ بڑی مزیدار ہے، بڑی لذیذ ہے، بڑا لطف آیا۔ اب ہوا یہ کہ پہلے تو وہ سلاد کھانے کے لیے بے قرار تھی، لیکن اب کھانے کے بعد اس کا شوق اور بڑھ گیا۔ اسے اس قدر لطف آیا تھا کہ دوسرے روز وہ 3 گنا زیادہ اشتیاق سے شوہر کو کہنے لگی، کل سلاد کھانے کا بہت لطف آیا تھا، آج ذرا زیادہ لاؤ تاکہ میں جی بھر کے کھاؤں۔ شوہر اپنی جگہ خوفزدہ تھا کہ اگر جادوگرنی کو پتہ چل گیا تو جان کی خیر نہیں، لیکن وہ بیوی کی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، چلو ایک بار اور لے آتا ہوں، جادوگرنی کو کیا پتہ چلے گا۔ یہی کچھ سوچ کر وہ اس رات بھی باغ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب آدھی رات کا سما ہوا تو وہ کل کی طرح اٹھا اور دیوار پھاند کر باغ میں جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ دیوار سے نیچے کودا اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے دیکھا اس کے بالکل سامنے جادوگرنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ غصے میں لال بھگوکا نظر آ رہی تھی۔ تمہاری یہ جرات کیسے ہوئی؟ وہ غصے میں چیخ کر بولی، تم چوروں کی طرح دیوار پھاند کر میرے باغ میں آئے اور سلاد کے پودے توڑ کر لے گئے، اب تمہیں اس کی سزا کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر آدمی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے معاف کر دو، میں بڑی مجبوری اور ضرورت کے تحت
तुम्हारे बाग में आया था। फिर उसने अपनी बात की वजाहत करते हुए जादूगरनी को बताया, मेरी बीवी ने घर की खिड़की में से तुम्हारे बाग में ये पौधे देखे थे। उनकी सलाद खाने के लिए वो इस कदर बेकरार थी कि अगर न खाती तो मर जाती। इसलिए मैंने पौधे तोड़ने की जो रात की, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। जैसे ही जादूगरनी ने यह बात सुनी, उसका सारा गुस्सा जाता रहा। वो कहने लगी, अगर वाकई ये बात है तो तुम बता रहे हो तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तुम जिस कदर चाहो सलाद के पौधे ले जा सकते हो, मैं तुम्हारा कसूर माफ कर दूंगी। जादूगरनी की यह बात सुनकर उसकी जान में जान आई। वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए लब खोल ही रहा था कि जादूगरनी ने कहा, मगर तुम एक शर्त पर पौधे ले जाओगे। वो क्या? उसने जल्दी से दरियाफ्त किया, जिस पर जादूगरनी बोली, शर्त यह है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मुझे देना होगा। मैं एक माँ की तरह उसकी देखभाल और हिफाजत करूंगी। आदमी को यह भी खौफ था कि अगर उसने इनकार किया तो जादूगरनी उसे सजा देगी। हो सकता है उसे जान ही से मार दे और उसकी बीवी को भी नुकसान पहुंचाए। लिहाजा वो राजी हो गया। कहने लगा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसने बहुत से पौधे तोड़े और वापस घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। वो बहुत परेशान हुई, मगर क्या कर सकती थी। दिन गुजरते गए। आखिर वो दिन भी आ गया जब उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। इतने में जादूगरनी भी वहां आ गई। उसने उसका नाम रपंजल रखा, क्योंकि सलाद के उन पौधों को उसी नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद उसने बच्ची को उठाया और चली गई। रपंजल बड़ी होने लगी। जो वो बड़ी हो रही थी, उसका हुस्न और भी निखरता जा रहा था। जब उसकी उम्र 12 बरस की हुई तो जादूगरनी ने उसे एक ऐसे मीनार में बंद कर दिया जो जंगल के दरमियान वाक़या था। उस मीनार की न तो सीढ़ियां थी और न ही कोई दरवाजा था, सिर्फ उसकी चोटी पर एक खिड़की थी। जादूगरनी जब कभी रापंजल के पास जाना चाहती, वो मीनार के नीचे खड़ी होकर बुलंद आवाज में कहती, अपने बाल नीचे लटकाओ। रापंजल के बाल गैर मामूली तौर पर बहुत लंबे थे और सोने की तरह सुनहरे और इंतहाई खूबसूरत थे। जब भी जादूगरनी मीनार के नीचे आकर यह आवाज लगाती, वो अपने बालों की शक्लें दूर करके उन्हें खिड़की के साथ मजबूती से बांध देती और बाकी नीचे की तरफ लटका देती। उसके बालों की लंबाई 20 एल थी। एक एल 45 इंच का पैमाना होता है। चुनाचे जब वो बाल नीचे लटकाती तो जादूगरनी उन्हें पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ जाती। उसके ऊपर जाने और नीचे आने के लिए बाल ही सीढ़ी का काम देते थे। इस तरह रापंजल को उस मीनार पर रहते हुए कई बरस हो चुके थे। एक बार हुआ यह कि बादशाह का बेटा जंगल में से गुजर रहा था। जब वो उस मीनार के पास से जा रहा था तो अचानक उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। वो चौंक कर वहां रुक गया। इस जंगल में वो कौन है? वो सोचने लगा। लड़की की आवाज इस कदर सुरीली थी कि वो वहां ठहर कर सुनने लगा। उस वक्त रापंजल तन्हाई में वक्त गुजारने की खातिर गाने से दिल बहला रही थी। शहजादा थोड़ी देर तक खड़ा गाना सुनता रहा और फिर मीनार पर चढ़ने के इरादे से दरवाजा तलाश करने लगा, लेकिन उसे न तो कोई दरवाजा मिला और न ही ऊपर जाने का कोई रास्ता नजर आया। दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि जिस मीनार का कोई दरवाजा नहीं है, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है, उस पर कौन गा रहा है। उसी उधेड़पन में वो कुछ देर वहां रुका रहा और फिर अपने महल की तरफ लौट गया। शहजादा अपने महल में तो चला गया था, लेकिन उसका दिल और जहन अभी तक उस मीनार में था। वो रह रहकर उसी सुरीली आवाज के बारे में सोच रहा था। रात भर उसी के मुतालिक सोचता रहा और फिर जो ही सुबह हुई, वो जल्दी जल्दी तैयार होकर जंगल में उसी जगह पहुंच गया। वहां जाकर एक दरख्त की ओट में छुप गया ताकि देखे उसमें क्या राज है। अभी थोड़ी देर ही हुई थी, उसने देखा कि एक जादूगरनी आई। वो मीनार के नीचे खड़ी हो गई और बुलंद आवाज से कहने लगी, ए रापंजल, ए रापंजल, अपने बाल नीचे लटकाओ। जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर से रापंजल ने अपने बाल नीचे लटका दिए और जादूगरनी उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ गई। अच्छा, तो ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी है। शहजादा अपने आप से कहने लगा, मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। वो ये इरादा करके वापस चला आया और फिर तीसरे रोज जब शाम होने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में उसी मीनार के पास पहुंच गए। उसने घोड़ा एक तरफ बांधा और खुद मीनार के नीचे जाकर आवाज दी, ए रापंजल, अपने बाल नीचे लटकाओ। जो ही उसने ये कहा, उसके साथ ही उसने देखा कि लड़की के लंबे बाल लटकते हुए उस तक पहुंच गए। उसने जल्दी से बाल पकड़े और उनके सहारे ऊपर चला गया। ऊपर जाकर देखा तो एक हसीनो जमील नौजवान लड़की उसके सामने खड़ी थी। लड़की उसे देखकर खौफजदा सी हो गई, क्योंकि वो जब से पैदा हुई थी उसने किसी मर्द को नहीं देखा था। अब जो शहजादे को देखा तो सहम कर एक तरफ को हो गई। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शहजादे ने उसे तसल्ली दी, फिर उसे बताया, मैं एक शहजादा हूँ। 3 रोज पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारे गाने की आवाज सुनी थी। उस वक्त से मैं तुम्हें देखने के लिए बेकरार था, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। जब उसने ये कहा तो लड़की का खौफ दूर हुआ
और वो दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में शहजादे ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊं तो क्या तुम राजी होगी? अब रापंजल ने उसे पहली बार गौर से देखा। वो खूबसूरत और नौजवान था। उसने सोचा, ये गुथियल से ज्यादा मुझसे प्यार करेगा। गुथियल जादूगरनी का नाम था। ये सोचकर उसने शहजादी को जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। उसके साथ ही उसने अपना हाथ शहजादे के हाथ में दे दिया और इस तरह वो दोनों मियाँ बीवी बन गए थे। फिर रापंजल शहजादे से कहने लगी, तुम्हारे साथ जाने में मुझे खुशी होगी, मगर मुझे नहीं मालूम कि मैं इस मीनार से नीचे कैसे जाऊंगी। मैं आज तक नीचे नहीं गई। शहजादा भी सोच में पड़ गया। वो तो उसके बाल पकड़कर नीचे उतर जाएगा, मगर ये कैसे उतरेगी? वो उसी शशो पंज में गिरफ्तार था कि लड़की बोली, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो क्या? जल्दी बताओ। शहजादा बेसब्री से पूछने लगा। उस पर रापंजल ने बताया, तुम जब भी मेरे पास आया करो, अपने साथ रेशम की एक डोरी लेकर आना। जब बहुत सी डोरियां जमा हो जाएंगी तो मैं उनसे सीढ़ी बना लूंगी। इस तरह जब सीढ़ी तैयार हो जाएगी तो मैं उसके जरिए नीचे उतर जाऊंगी। फिर तुम मुझे अपने घोड़े पर सवार करके ले जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। शहजादा फौरन राजी हो गया। उसके बाद वो हर शाम को आता, क्योंकि दिन के वक्त जादूगरनी आती थी। जब भी आता अपने साथ रेशम की एक डोरी लेकर आता। इस तरह जादूगरनी को कानों कान खबर ना हो सकी कि यहाँ कोई और भी आता है। एक दिन हुआ यह कि रापंजल बातों बातों में जादूगरनी से कहने लगी, ए गुथियल, मुझे बताओ तुम इस कदर भारी क्यों हो? जब मैं तुम्हें ऊपर खींचती हूँ तो तुम उस शहजादे से कहीं ज्यादा बोझल होती हो जो अभी यहाँ आने वाला है। जैसे ही उसने ये कहा, जादूगरनी गुस्से में चीख पड़ी, ए बदनसीब लड़की, ये मैं क्या सुन रही हूँ? उस वक्त वो गुस्से में आपे से बाहर हुई जा रही थी और कह रही थी, मैं ये समझ रही थी कि मैंने तुम्हें दुनिया से बिल्कुल अलग रखा हुआ है, मगर तुमने मुझे धोखा दिया है। इतना कहने के साथ ही जादूगरनी तिलमिला के आगे बढ़ी। उसने रापंजल के बाल पकड़ के उन्हें बल दिए और फिर अपने बाएं हाथ पर लपेट कर उन्हें काट दिया। इस तरह देखते ही देखते उसके खूबसूरत सुनहरी बाल कटे हुए फर्श पर पड़े थे। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगी जहां तू तन्हाई में जान दे देगी। जादूगरनी ने यह कहा और रापंजल को एक बयाबा में छोड़ आई, जहां वो बेचारी अपनी बदनसीबी को रोती हुई तन्हा रह गई। अब हुआ यह कि जादूगरनी रापंजल को बयाबा में छोड़ के वापस उसी मीनार में आ गई। उसने जो बाल काटे थे उनका एक सिरा खिड़की से बांध दिया और खुद शहजादे का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई तो शहजादा हस्बे मामूल वहां आया और बुलंद आवाज में पुकारा, ए रापंजल, ए रापंजल, अपने बाल नीचे लटकाओ। जादूगरनी तो पहले से ही उसकी मुंतजर बैठी थी। जैसे ही शहजादे की आवाज सुनी, उसने जल्दी से बाल नीचे लटका दिए और शहजादा उन्हें पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ गया। मगर ये क्या, वो ऊपर जाकर हक्का बक्का रह गया। उसकी खूबसूरत और प्यारी रापंजल की जगह खौफनाक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी, जो गुस्से में लाल भभूका हो रही थी। वो शहजादे को देखते ही पांव पटकती हुई चीख कर बोली, अच्छा तो तुम वो आदमी हो। फिर उसने बड़ी हिकारत से कहा, तुम अपनी प्यारी बीवी को लेने आए हो, मगर वो गाने वाला खूबसूरत परिंदा अब उस पिंजरे में नहीं है। उसे बिल्ली पकड़ के ले गई है और अब वो तुम्हारी आंखें भी नोच कर बाहर निकाल देगी। फिर उसने एक खौफनाक टेका लगाया और कहा, तुमने रापंजल को खो दिया है, अब तुम उसे दोबारा कभी न देख सकोगे। ये सुनते ही शहजादा गम से दीवाना सा हो गया और मायूसी के आलम में उसने मीनार से छलांग लगा दी। उसने जादूगरनी से तो अपनी जान बचा ली, लेकिन उसने सर पर ताज पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें जख्मी होकर लहूलुहान हो गई। इस तरह अब वो देख भी नहीं सकता था। शहजादा गम और मायूसी में जंगल में मारा मारा फिरता रहा। जब भूख लगती तो वो जंगल से फल फलारी खा के पेट भर लेता और फिर दीवानों की मानिंद इधर उधर घूमने लगता। उसके लबों पर उसकी प्यारी बीवी रापंजल का नाम था और वो उसे पुकारता हुआ भटकता फिर रहा था। इसी तरह वो कई बरसों तक जंगल में इधर से उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि आखिरकार वो उसी बयाबा में पहुंच गया जहाँ रापंजल अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ बदनसीबी के दिन पूरे कर रही थी। एक लड़का शहजादे की निशानी था, जिसके सहारे वो अब तक जिंदा थी। उसने जब ये सुना कि कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है तो बड़ी हैरान हुई। इस बयाबा में इतने बरसों के बाद मुझे कौन पुकार सकता है, वो सोचने लगी। इतने में फिर आवाज आई, कोई मुसलसिल उसका नाम लेकर पुकार रहा था। वो भागकर आगे गई तो देखा वो तो उसका शोहर शहजादा था, जो उस वक्त अंधों की तरह भटक रहा था। रापंजल उसे देखकर तड़प उठी। वो लपक कर गई और उसके गले से लिपट कर रोने लगी। करना खुदा का ऐसा हुआ कि रापंजल के आंसू शहजादे की आंखों में गिरे और उसके साथ ही उसकी बीनाई वापस लौट आई। अब वो देख सकता था और उसने सबसे पहले अपनी रापंजल को देखा। दोनों कई बरसों के बाद गले मिले। शहजादा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उनको लेकर अपने शहर आ गया। उसके बूढ़े बाप ने अपने बेटे को देखा तो उसको भी दोबारा जिंदगी मिल गई, मगर वो बूढ़ा हो चुका था।
اس نے تخت و تاج بیٹے کے سپرد کر دیا اور اس طرح شہزادہ بادشاہ بن کر حکومت کرنے لگا، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔